جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز سر. چلیں ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو جوائن کر لینے دیں. ابھی 2 منٹ ہم مزید ویٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم شروع کر دیں گے. جی مزید 1 منٹ ہم اور دیکھ لیتے ہیں، جو بھی جوائن کرے گا مزید، اگر کوئی جوائن کرتا ہے تو ادروائز ہم اپنا شروع کر دیں گے. کرمنل پروسیجر کوڈ. جی تو شروع کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی ابھی شروع نہیں کیا ہم نے، بس ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کہ 1-2 منٹ مزید دیکھ لیتے ہیں، لیکن اب شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، ہم نے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 اس کو شروع کرنا ہے آج. اس سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو. اس کو ہم نے کمپلیٹ بھی کیا. اس کا ہم نے تقریباً ہر آرٹیکل پڑھا، ہر آرٹیکل کی اہمیت کو دیکھا، اس کے جو کنسیپٹس تھے وہ کلیئر کیے. اس کے بعد آج جو دوسرا سبجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ. 10 نمبر کے ایم سی کیوز جو ہیں لاگ ایڈ کے اندر وہ اس میں سے پوچھے جائیں گے. اچھا جی، آج ہم 2 چیپٹرز کا جو اوور ویو ہے وہ لیں گے، چیپٹر 1 اور چیپٹر 5. چیپٹر 1 کے اندر جو ہے تقریباً ساری کی ساری ڈیفینیشنز ہیں. چیپٹر 5 جو ہے وہ اسکیپ، ڈیٹینشن اور اریسٹ، ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. اچھا جی، آپ لوگ اپنی سی آر پی سی کی بکس نکال لیں کائنڈلی. سی آر پی سی کی بکس اپنے نکال لیں، چیپٹر 1 کھول لیں، شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ، سیکشن 1. جی شروع کریں. اوکے. اچھا جی، سیکشن 1 جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کا آفیشیل جو نیم ہے وہ کیا ہوگا. دس ایکٹ میں بی کالڈ دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. اگر سوال آ جاتا ہے تو دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 اس پہ آپ ٹک کریں گے، اور اس کی جو کمنسمنٹ ڈے ہے وہ ہے 1 جولائی 1898. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، کمنسمنٹ ڈے. اس کے بعد اس کی جو ایکسٹینٹ ہے، اس کی جو پاور ہے، یہ کہاں کہاں پہ انفورسیبل ہے، یہ ہول آف پاکستان کے اندر اس کی کمنسمنٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اس کا اگر ہم اس کو ویسے اسکوپ دیکھیں، دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 از ایمڈ
एक्ट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म लॉ ऑफ प्रोसीजर। बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉ है। अगर पूछ लिया जाता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है किस टाइप का लॉ है, तो ये प्रोसीजरल लॉ है। उसके बाद है कि हमारे पास डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर यहाँ से शुरू हो रही है। एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन सबसे पहले हमें पूछी जा रही है, बताई जा रही है। एडवोकेट जनरल से क्या मुराद है? एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो गवर्नमेंट एडवोकेट, और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट, सच ऑफिसर एज अ provincial government may from time to time appoint in this behalf। एडवोकेट जनरल से मुराद वो एडवोकेट है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस मकसद के लिए लगाएगी। ठीक हो गया जी। ये एडवोकेट जनरल जो भी गवर्नमेंट आती है डेफिनेटली वो अपने विंग को या अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए टाइम टू टाइम हर गवर्नमेंट अपने अपने जो एडवोकेट्स हैं इनके उनको अपॉइंट करती है। उसके बाद है जी बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से? बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर जो बेल है इसका जो राइट है ये मैटर ऑफ राइट है अक्यूज पर्सन का। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर बेल जो है एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होती अक्यूज पर्सन की, बल्कि ये डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की। ठीक हो गया जी। इसकी हम पढ़ लेते हैं इसकी लैंग्वेज। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस शोन एज लायबल इन द सेकंड शेड्यूल or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offence means any other offence। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 एक ऐसा शेड्यूल है सीआरपीसी के अंदर जिसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है कि कौन सा ऑफेंस जो है ये बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। बेलेबल भी मैंने आप लोगों को बता दिया और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज। चार्ज से क्या मुराद है जी? Charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one। Charge जो है ये इल्जाम को बोलते हैं। ये एक ऐसा इल्जाम है जो कि अक्यूज पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। ठीक हो गया जी। अक्यूज पर्सन के ऊपर कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है अंडर आर्टिकल 242 ये जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है, और अंडर सेक्शन 265 सब सेक्शन कोई है आई थिंक सी है या डी है, उसके तहत जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो चार्ज फ्रेम करती है। बेसिकली चार्ज फ्रेम के अंदर जो है बताया जाता है कि अक्यूज पर्सन को कि आपके ऊपर इल्जाम क्या है। इसकी जो वर्डिंग है एक मखसूस सी वर्डिंग होती है। कोर्ट उस वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब करके पूछती है कि फलां टाइम फलां डेट के ऊपर फलां जगह पे फलां दिन आपने ये काम किया था, आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आप इसको कबूल करते हैं। बेसिकली ये होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है मीन्स एन ऑफेंस फॉर, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर may in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force arrest without warrant। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से मुराद ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर को कहीं से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो विदाउट वारंट ही किसी भी शख्स को किसी भी जगह पे अरेस्ट कर सकता है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर को किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेना पड़ती है वारंट की सूरत में। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है जी? कंप्लेंट से मुराद ऐसे इल्जामात हैं जो कि आप ऑरली या रिटन सूरत में किसी भी शख्स के ऊपर लगाते हैं कि इस शख्स ने मेरे खिलाफ ये ज्यादती की है। और इसका जो सेक्शन है वैसे वो है सेक्शन 200 सीआरपीसी कंप्लेंट का। कंप्लेंट से मुराद ऐसे इल्जामात हैं जो कि मुद्दई पार्टी लगाती है कि फलां शख्स ने मेरे साथ ये ज्यादती की है। ये रिटन शेप में भी हो सकते हैं और ये ऑरली भी हो सकते हैं।
हाई कोर्ट से क्या मुराद है जी? हाई कोर्ट से मुराद ऐसी कोर्ट है जो कि किसी भी प्रोविंस के अंदर हाईएस्ट कोर्ट हो क्रिमिनल अपील की, हाई कोर्ट कहलाएगी। अच्छा जी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सेक्शन के और ये आई थिंक एल, ये आ गया जी हमारे पास इंक्वायरी। इंक्वायरी जो है आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करवाती है। ठीक हो गया जी, इंक्वायरी कंडक्ट हमेशा कोर्ट करेगी या फिर इंक्वायरी जो कंडक्ट वो हमेशा मैजिस्ट्रेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है आगे सेक्शन आई आप लोग एल आप लोग देखें 4 का सब सेक्शन एल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है ये हमेशा ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि पुलिस कंडक्ट करती है। बेसिक्स इसका कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिगेशन का और इंक्वायरी का। इंक्वायरी कंडक्ट करती है कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंडक्ट करती है। उसके बाद है जी सब सेक्शन एम, judicial proceedings. Judicial proceedings includes any proceeding in the course of which evidences are may be legally taken on oath. ये ऐसी चीजों के ऊपर मुश्तमिल है जिसके अंदर एविडेंस लेना हो, चाहे वो ऑन ओथ हो या विदाउट ओथ हो। मैजिस्ट्रेट means a judicial magistrate and includes a special judicial magistrate appointed under section 12 and 14. ऑफेंस की डेफिनेशन आ गई सेक्शन ओ के अंदर, ये आप लोग देखें। ऑफेंस से क्या मुराद है? ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इट आल्सो इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैपिटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ऑफेंस से मुराद हर वो एक्ट है जो कि टाइम बीइंग जो भी लॉ चल रहा हो, अगर उस ऑफेंस वो जो भी उस वक्त कानून चल रहा है, अगर किसी एक्ट को उन्होंने ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया तो वो ऑफेंस कहलाएगा या वो ऑफेंस बन जाएगा कोई भी एक्ट। इस हवाले से आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी है डबल जेओपर्डी का। उसके अंदर ये है कि आप एक ऑफेंस के ऊपर एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते। पर ऑफेंस की आपने जो डेफिनेशन है वो यहाँ से ये याद कर लेनी है, इसको जरा सा रट्टा मार लेना। अच्छा जी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की यहाँ पे डेफिनेशन उन्होंने दे दी है, प्लेस की दे दी है, प्लीडर की दे दी है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन होगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनएबल फ्रॉम द इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक to such officer and is above the rank of constable। ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, ये बंदा जो है कांस्टेबल रैंक का बंदा नहीं बन सकता। कांस्टेबल रैंक से ऊपर जो भी होगा, चाहे वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, इनमें से कोई भी बंदा जो है वो इंचार्ज बन सकता है पुलिस स्टेशन का। प्लेस से क्या मुराद है? प्लेस से मुराद कोई भी हाउस, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी टेंट या वेसल है। ठीक हो गया जी, टेंट बना हुआ है या टेंट लगा हुआ है वो भी जो है प्लेस के अंदर आएगा। कोई भी वेसल है, कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी हाउस है, ये तमाम की तमाम प्लेस की जो है डेफिनेशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्लीडर का। प्लीडर का आप लोगों ने देख लेना है, कमेंट्री है, कमेंट्री। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर पीनल कोड। कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जी, किन किन का ट्रायल चलेगा? सेक्शन 5 में पढ़ रहा हूं, एक सेकेंड। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? हो गया सर। ओके। अच्छा जी, सेक्शन 5 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। ऑल ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड into tried and otherwise dealt with according
टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन, जितने भी ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, उन ऑफेंसेस का ट्रायल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही होगा। ठीक हो गया जी। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force, regulating the manner or place of investigation, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। अगर टाइम भी कुछ कोई और चीज आ जाती है तो ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो कवर हो जाएगा उनके अंदर। अक्यूज पर्सन, जैसे कि अब बैंकिंग लॉज हैं, ये अलग से इनका ट्रायल है, जेल ट्रायल्स हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज हैं, ऑफेंसेस जो हैं, प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी है, प्रोहिबिशन ऑर्डर है, ट्रायल बाय स्पेशल जजेस हैं। तो टाइम बीइंग अगर कोई चीज असाइन कर दी जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा उधर। अच्छा जी, अब चैप्टर 5 खोल लें अपना। डेफिनेशंस हमारी क्लियर हो गई हैं। डेफिनेशंस बेसिकली मुश्किल नहीं है, तो आप लोगों ने देख लेनी है, ये आती हैं। चैप्टर 5 46 सेक्शन से ये शुरू हो रही है, बड़ा ही अहम है। वैसे भी आपको जनरली इन चीजों का बीइंग एन एडवोकेट पता होना चाहिए। अरेस्ट हाउ मेड, सेक्शन 46 डिफाइन करता है जी कि अरेस्ट जो है वो कैसे किया जाता है। किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट करने जा रहे हों तो ऐसी सूरत में एक्चुअली टच करना उस बंदे को, उसकी बॉडी को जरूरी है। यानी कि जुबानी कहने के साथ साथ उस बंदे को फिजिकली टच करना भी जरूरी है कि यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसी सूरत में ही वो एज अ अरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने दूर से उसको कह दिया जी कि यू आर अंडर अरेस्ट और आपने उसको फिजिकली टच नहीं किया, उसको पकड़ा नहीं है, उसको हाथ बाजू से कहीं से भी, तो ऐसी सूरत में वो अरेस्ट जो है वो कंप्लीट जो है नहीं होगी। ठीक हो गया जी। सब सेक्शन 2 है 46 का, resisting endeavor to arrest if such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। जिस शख्स को पुलिस अरेस्ट करने के लिए गई है, अगर उस बंदे ने रेजिस्ट कर दिया तो पुलिस के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो तमाम हरबे इस्तेमाल करे बगैर उसको नुकसान पहुंचाए कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए। सबसेक्शन 3 है नीचे, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स द राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास 47, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ऐसा शख्स जिसको अरेस्ट करना चाहते थे पुलिस वाले और वो किसी ऐसी प्लेस पे एंटर हो गया तो वहां पे उसकी सर्च आउट उसको कैसे किया जाएगा, सेक्शन 47 उसके ऊपर रोशनी डालता है, वो हम देख लेते हैं। इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place the person residing in or being in charge of such place shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto and offered all reasonable facilities for a search therein। पुलिस गई है जी किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए, वो बंदा आगे से किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी टेंट में, किसी प्लेस पे, किसी भी प्लेस पे वो एंटर हो गया। पुलिस वाले को या पुलिस ऑफिसर को या जो लोग उसको अरेस्ट करने के लिए गए हैं उनको यकीन है कि बंदा यहीं पे छुपा हुआ है, तो ऐसी सूरत में उस प्लेस का जो भी ऑनर होगा, जो भी मैनेजर होगा, जो भी उसकी लुक आफ्टर कर रहा होगा, अगर वो वहां पे मौजूद है तो वो पुलिस को के साथ फुली कोऑपरेट करेगा कि उस जगह की तलाशी ली जाए और उस जगह पे छुपे हुए बंदे को निकाल के अरेस्ट किया जाए। पुलिस को इख्तियार हासिल है कि वो उस जगह की इस मकसद के साथ तलाशी ले सके कि यहाँ से उस ऑफेंडर को हमने अरेस्ट करना है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 48 प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, जहां पे इंग्रेस ना ली जाए, जहां पे ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वहां पे इंग्रेस नहीं ली गई, इजाजत नहीं ली गई, वहां पे कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, कोई मैनेजर अवेलेबल नहीं है, उस जगह का मालिक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या पुलिस चुप करके वहां से वापस आ जाएगी? नहीं। ऐसी सूरत में क्या होगा? इफ इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी obtained अंडर सेक्शन 47 इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग विदाउट under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein. अगर सेक्शन 47 के तहत इजाजत नहीं ली गई उस जगह की, अब ऐसे हालात हैं कि वहां पे कोई बंदा नहीं है जिससे इजाजत ली जाए, तो पुलिस वाले मुंह नहीं देखेंगे खड़े होके, बल्कि उस जगह पे एंटर हो जाएंगे उस शख्स को अरेस्ट करने के लिए या वहां की तलाशी लेने के लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ब्रेकिंग ओपन जनाना यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोविजन एक प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन, अगर वो किसी अपार्टमेंट में दाखिल हो गया और वहां पे जो उसकी ऑक्यूपाई कर रही है वो कोई खातून है, not being the person to be arrested, who according to the custom does not appear in public, such person or a police officer shall before entering such apartment give notice to such woman. अगर वो खातून आम तौर पे लोगों के सामने नहीं आती, पर्दादार खातून है, तो ऐसी सूरत में पुलिस ऑफिसर उस खातून को इतनी इजाजत प्रोवाइड करेगा या नोटिस देगा कि वो वुमन जो है वो वहां से बाहर आ जाए। ठीक हो गया जी। गिव नोटिस टू सच वुमेन दैट शी इज एट लिबर्टी टू विदड्रॉ एंड शैल ऑफर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विदड्रॉइंग एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट। जब वो खातून बाहर आ जाएंगी उसके बाद पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो भी वहां पे उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए गए हैं वो जनान खाना को तोड़ दें, अंदर दाखिल हो जाएं और उस बंदे को जो है अरेस्ट कर लें। ठीक है जी, समझ आ गई है? क्लियर है यहां तक? हेलो, यहां तक समझ आ गई है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? समझ भी आ रही है या नहीं? सर आपकी आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, हमने अब तक सेक्शन 46 को पढ़ा, 47 को पढ़ा और 48 को पढ़ा। 46 के अंदर हमने देखा कि किसी भी शख्स को अरेस्ट कैसे किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ इतनी सी चीज थी कि अरेस्ट हाउ मेड, किसी भी शख्स को जब तक फिजिकली टच नहीं किया जाएगा अरेस्ट कंप्लीट नहीं होगी। ठीक हो गया जी। 46 के अंदर इतनी सी बात है। 47 के अंदर हमने पढ़ा कि जहां पे भी पुलिस वाले किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए गए हैं, अगर वो किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी वेसल के अंदर, किसी टेंट के अंदर, कहीं पे भी, किसी बिल्डिंग अपार्टमेंट कहीं पे भी वो एंटर हो गया, तो वहां पे वो लोग उसको सर्च आउट करने के लिए उससे पहले इजाजत लेंगे। ठीक हो गया जी। 47 में हमने ये पढ़ा। 48 में हमने ये पढ़ा सेक्शन 48 के अंदर कि अगर इंग्रेस नहीं ली गई तो ऐसी सूरत में
کیا وہاں پولیس والے جو ہیں کسی اللیگیلٹی کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر وہاں پہ کوئی بندہ اویلیبل نہیں تھا یا انگریس نہیں لی گئی اس جگہ پہ انٹر ہونے کی، تو ایسی صورت میں بھی پولیس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وہاں پہ انٹر ہو کے اس بندے کو اریسٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ زنان خانہ کے حوالے سے یا ہم نے دیکھا کہ اگر کسی اپارٹمنٹ کے اندر کوئی خاتون رہ رہی ہیں اور عام طور پہ وہ پردہ نشین ہے، تو ایسی صورت میں پولیس اس زنان خانہ کو توڑنے سے پہلے یا بریک کرنے سے پہلے، وہاں پہ انٹر ہونے سے پہلے اس خاتون کو فریلی جو ہے موو کرنے کی اجازت دیں گے کہ وہ باہر آ سکے. اس کے بعد ہی وہ انٹر ہو کے اندر اس بندے کو اریسٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم نے پڑھا. یہاں تک سب لوگوں کو کلیئر ہو گئے؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی 49، پاور ٹو بریک اوپن ڈورز اینڈ ونڈوز فار پرپوزز آف لبریشن. ٹھیک ہو گیا جی. اینی پولیس آفیسر اور ادر پرسن آتھورائز ٹو میک این اریسٹ میں بریک اوپن اینی آؤٹر اور انر ڈور اور ونڈو آف اینی ہاؤس اور پلیس ان آرڈر ٹو لبریٹ ہمسیلف اور اینی ادر پرسن who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein. اب دیکھیں گے پولیس والے کہیں پہ گئے، انٹر ہوئے، وہاں پہ وہ کسی بندے کو اریسٹ کرنے کے لیے گئے یا کسی کو چھڑوانے کے لیے گئے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ وہ ٹریپ کا شکار ہو گئے، ان کو وہاں پہ ڈیٹین کر لیا گیا. تو پولیس والوں کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں سے آزاد کروائیں، چاہے ان کو ونڈو توڑنی پڑے، دروازہ توڑنا پڑے، وہ کچھ بھی وہاں پہ ان کو کرنا پڑے، وہ اپنی آزادی کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے ان کو سیکشن 49 یہ اتھرائز کرتا ہے کہ وہ ونڈو کو توڑ دیں یا وہ ڈور کو توڑ دیں یا جیسے بھی وہ باہر آ سکتے ہیں اپنی لبریشن کے لیے، اپنی آزادی کے لیے وہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن صرف لا فلی صورت میں اگر وہ انٹر ہوئے ہوں، انلیگلی اگر انٹر ہوئے تو سیکشن 49 ان کو کور نہیں دے گا، ان کو شیلڈ پرووائڈ نہیں کرے گا. سیکشن 50، نو unnecessary restraint. The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. کسی بھی شخص کو جو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو unnecessary restraint نہیں کیا جائے گا. Section 51، search of arrested person. Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail, but the person arrested cannot furnish bail, and whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, the officer making the arrest or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparels found upon him. یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر اریسٹ کیا گیا، اگر بیلیبل افینس تھا تو وہ بیل کے اوپر فوراً سے ہی رہا کرنے کے اس کے آرڈرز ہیں. پولیس بھی اس کو بیلیبل اگر اوفینس ہے تو شورٹی لے کے وہیں پہ چھوڑ سکتی ہے، اگر نان بیلیبل ہے تو لازمی سی بات ہے وہ اس کو ریسٹرینٹ کریں گے. اس کے علاوہ اگر کسی پرائیویٹ پرسن نے کسی بھی شخص کو اریسٹ کیا اور آ کے اس نے پولیس کے حوالے اس بندے کو کیا، تو پولیس سب سے پہلے اس بندے کی تلاشی لے گی، اس کے پاس سے چیزیں برآمد کرے گی، اس کی جیبوں کی، کپڑوں کی، جو بھی اس کے پاس سامان ہے اس کی تلاشی لی جائے گی. اس کی لسٹ باقاعدہ بنائی جاتی ہے کہ کیا کیا چیز اس سے برآمد ہوئی ہے. اس کے بعد وہ تمام چیزیں اس بندے سے لے لی جاتی ہیں ماں سوائے ان کپڑوں کے جو اس بندے نے اس وقت پہنے ہوئے ہیں. سیکشن 51 بیسیکلی ایک طریقہ کار بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر اریسٹ کیا گیا تو پولیس کو کیا کرنا ہے. تب پولیس کو سب سے پہلے اس کی تلاشی لے کے تمام چیزیں، جو بھی چیزیں اس کے پاس اس وقت اس کی کسٹڈی میں ہیں، پولیس اس کی کسٹڈی سے وہ تمام چیزیں لے کے لسٹ بنا کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے ماں سوائے کپڑوں کے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سیکشن 52 بڑا ہی اہم ہے، اکثر پوچھ لیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے فیمیل کی تلاشی کیسے لی جاتی ہے، یا موڈ آف سرچنگ وومن یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے. یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب بھی کسی خاتون کی تلاشی لینی ہو تو یہ لازم ہے
کہ कोई दूसरी खातून ही तलाशी लेगी। इस चीज के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो किया जाता है कि किसी भी खातून की अगर तलाशी लेना मकसूद हो तो आगे से खातून लेडी कांस्टेबल या कोई भी लेडी ही होगी जो उस खातून की तलाशी लेगी। मर्द हजरात को इजाजत नहीं है कि वो किसी भी फीमेल की तलाशी ले सकें। ठीक हो गया जी। सेक्शन 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। सेक्शन नेक्स्ट है जी हमारे पास 53 पावर्स टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। जब भी किसी बंदे से जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं वो बरामद किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में पुलिस उन वेपन्स को सीज कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। और जब भी कोर्ट जो है उसको रिक्वायर करे तो वो जो भी उन्होंने वो उसका पार्सल बनाया हुआ था वो कोर्ट के अंदर जाके उसको पेश कर देते हैं। यानी कि वो फौरन से उसको नहीं दी जाती। वो जितने भी ऑफेंसिव वेपन्स हैं वो से बरामद किए जाते हैं, वो उनको पुलिस सीज कर लेती है। समझ आ गई है यहाँ तक? अच्छा जी। 53A एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप ETC बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है 53A के अंदर कि ऐसा पर्सन जिसके ऊपर रेप का इल्जाम हो तो उसके साथ क्या किया जाएगा या उसके साथ क्या सलूक किया जाता है आते साथ ही, क्योंकि उसका मेडिकल जो चेकअप है या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी उसको भेजा जाता है। तो वो है सेक्शन CRPC का 53A जिसके तहत उसको सेंड किया जाता है। When a person is arrested on a charge of committing an offense of rape, unnatural offense or sexual abuse or an attempt to commit rape, unnatural offense or sexual abuse under section 376, section 337 and section 377B respectively, and there are reasonable grounds for believing that an examination of the arrest person will afford evidence as to the commission of such offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. किसी भी शख्स के ऊपर अगर इल्जाम है 376 का, 377 का, 377B का, जब भी ऐसे बंदे को अरेस्ट करके लाया जाएगा और पुलिस अगर समझती है कि ये इल्जाम वाकई दुरुस्त है तो ऐसी सूरत में उस शख्स को जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड लीगल ये जो प्रैक्टिशनर होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके पास उस शख्स को एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 54 अरेस्ट विदाउट वारंट। वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, किन किन सूरतों के अंदर पुलिस जो है विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है? एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। बेसिकली जो सबसे बड़ी और सबसे मोटी बात है वो ये है कि पुलिस आपको विदाउट वारंट उस सूरत में गिरफ्तार कर सकती है जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक हो गया जी। ये 9 चीजें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि पुलिस हमें बगैर वारंट के राह चलते हुए किसी भी वक्त किस सूरत हाल के अंदर आपको पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। ये 9 सूरतें, जिनमें सबसे बड़ी सूरत ये है कि जब भी आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया या आपके ऊपर इल्जाम लगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो ऐसी सूरत में पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ये 9 सूरतें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ठीक हो गया जी। नजदीक आ गए, अब हम खत्म होने लगे हमारा ये चैप्टर भी। नेक्स्ट है सेक्शन 55 CRPC अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स ETC। अच्छा जी, अब हैबिचुअल रॉबर्स भी होते हैं, इनको अरेस्ट करने के हवाले से क्या प्रोविजन है जी? सेक्शन 55 हमें बताता है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में इन लाइक मैनर अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन फाउंड टेकिंग precautions to conceal his presence within the limits of such stations under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view of committing a cognizable offense। अच्छा जी, किसी भी राह चलते शख्स को अगर पुलिस ऑफिसर ये समझे कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा रहा है या वो हैबिचुअल
रॉबर है, तो ऐसी सूरत में पुलिस जो है अगर मुतमईन नहीं हो पाती उस शख्स से, और पुलिस को लगता है कि अगर ये बंदा ऐसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये बंदा कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा, तो ऐसी सूरत में भी पुलिस उस बंदे को अपने पास बिठा लेती है, अरेस्ट कर लेती है. एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन who has no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of himself. जब एक बंदा अपनी तसल्ली ना दे पाए कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, या उससे अगर उसका आईडी कार्ड मांगा जा रहा है और वो अपना आईडी कार्ड या अपना एड्रेस या अपना नाम प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में भी पुलिस उस बंदे को डिटेन कर लेती है. सी है एनी पर्सन हु इज बाय रेप्यूट एंड हैबिचुअल रॉबर, housebreaker or theft or thief or any habitual receiver of stolen property knowing it to be stolen, or who by rape habitually commits extortion or in order to the committing of extortion habitually puts or attempts to put person in fear of injury. ऐसा शख्स जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि वो हैबिचुअल रॉबर है, या उसकी रेप्यूट ऐसी हो कि वो हाउस ब्रेकर है या वो चोर है, ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को भी पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास इसके ऊपर पावर ऑफ हाई कोर्ट है. वैसे एक मैं आप लोगों को बता दूं, रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट ऑफ डेटनेस अंडर सेक्शन 56 एज मेलाफाइड डायरेक्टेड टू ट्रांसफर द ऑफिशियल्स responsible for the illegal detention to police lines and to conduct inquiry against the official. Those are दो SCMR 1819 पेज है. अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन आप लोग निकाल लें 56. प्रोसीजर क्या है व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट. ऐसी सूरत में क्या होगा जब एक पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को भेजे किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के लिए. ठीक हो गया जी. ऐसी सूरत में क्या होता है या क्या किया जाता है. When any officer in charge of a police station, जब कोई भी शख्स जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, और any police officer making an investigation under chapter 14 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant. जब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को अगर ऑर्डर जारी करता है कि आप जाके फलां बंदे को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लाएं. Any person who may lawfully be arrested without warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing. तो ऐसी सूरत में जो वो बॉस है, वो जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है, वो अपने अहकामात को राइटिंग की सूरत में देगा, जुबानी कलामी नहीं देगा, बल्कि वो राइटिंग की सूरत में उस शख्स को ऑर्डर्स जारी करेगा कि मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, आप जाके फलां बंदे को अरेस्ट कर लाएं. ठीक हो गया जी. आगे ये समझ क्या प्रोसीजर होगा जब पुलिस ऑफिसर अपने सब ऑर्डिनेट को कहे कि आप जाके किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लें. जी ठीक है. सेक्शन 57, रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस. When any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence. अब यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात आ रही है. ऐसे ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट आपको नहीं कर सकती. ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस और गिव्स अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर. अब देखिए पीछे हम पढ़ के आए हैं जी कि पुलिस आपको जो है विदाउट वारंट सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पकड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 57 ये कह रहा है, प्रोविजन दे दी गई है कि पुलिस ऑफिसर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर भी विदाउट वारंट पकड़ सकता है जब आप सेटिस्फेक्शन ना करा पाए पुलिस की, या पुलिस वालों ने जो भी अक्यूज पर्सन है नॉन कॉग्निजेबल केस का, अगर उससे उसका नाम पूछा जा रहा है, उससे उसकी रेजिडेंस पूछी जा रही है, उससे मालूमात उसके मुतालिक लेने की कोशिश की जा रही है और वो पुलिस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सूरत में भी पुलिस विदाउट वारंट नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है. ये आप लोगों ने कंप्लीट इसको वैसे रीड आउट कर लेना है सेक्शन को. इस सेक्शन का क्रक्स यही है. ठीक है जी. नेक्स्ट आगे चलें. जी जी सर. अच्छा जी 58
हाँ जी, क्लास एंड हो गई थी, इसमें एक टाइम लिमिट होता है मखसूस जूम का, वो ओवर हो गया था तो दोबारा इसलिए फिर लिंक भेजना पड़ा कि आप लोग ज्वाइन इसको दोबारा से कर लें। जी सेक्शन 58 था हमारा, हम इसको पढ़ रहे थे, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर ज्यूरिसडिक्शंस। अब देखें जी, हर पुलिस स्टेशन की एक अपनी मखसूस ज्यूरिसडिक्शन होती है। एक सेकंड, जी हर पुलिस स्टेशन की अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो लेकिन अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया जाए कि आपने इस ऑफेंडर को अरेस्ट करना है, तो सेक्शन 58 उस पुलिस ऑफिसर को ये ऑथराइज करता है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर उस शख्स को किसी भी जगह से अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, सेक्शन 58। अब आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 59, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अब देखें जी, जब भी कोई प्राइवेट पर्सन देखे, प्राइवेट पर्सन को भी, किसी भी शख्स को, किसी भी जो भी बंदा ऑफेंस के अंदर जो है, अगर ऑफेंस कर रहा हो, वो ऑफेंस किसी ने कमिट किया हो, तो प्राइवेट पर्सन को भी अख्तियार हासिल है कि वो शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक मखसूस तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है? वो तरीकाकार 59 सेक्शन हमें बताते हैं, हम इसको देख लेते हैं। आवाज के अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा? सर आवाज अब ठीक आ रही है। ठीक है। 59, any private person may arrest any person who is in his view commits a non-bailable and cognizable offence of any proclaimed offender and without unnecessary delay shall make over any person so arrested to a police officer। अब देखें जी, कोई ऑफेंडर था या किसी शख्स ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, तो ऐसी सूरत में, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो ऐसी सूरत में प्राइवेट जो पर्सन हैं वो उस बंदे को, इश्तिहारी को, कोई भी वहां पे वो बंदा जो है मौजूद है, तो उस शख्स को वो अरेस्ट कर सकते हैं और विदाउट एनी डिले वो शख्स को फौरन से ही पुलिस ऑफिसर के हैंड ओवर कर देंगे। ठीक हो गया जी। एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू पुलिस ऑफिसर और इन द absence of a police officer take a such person or causes him to be taken in custody to the nearest police station। अगर वहां पे कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो वो ऐसे शख्स को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और वहां पे जाके उस शख्स को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये था सेक्शन 59, इसका क्रक्स है। नीचे सब सेक्शन 2 इसका देख लें। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द provisions of section 54 a police officer shall rearrest him। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात की गई है कि अगर पुलिस को लगेगा कि भाई सेक्शन 54 के अंदर जो 9 चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप लोगों ने जो देखनी है, अगर पुलिस को भी ये लगेगा कि वाकई ये बंदा मतलूब है या इस बंदे ने कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कमिट किया है, तो ऐसी सूरत में पुलिस उसको रीअरेस्ट करेगी। यहाँ पे रीअरेस्ट का वर्ड यूज किया गया, यानी कि अरेस्ट करने की पावर प्राइवेट पर्सन को भी हासिल थी। अरेस्ट वो हो गया, जब पुलिस के पास ले जाया जाएगा तो पुलिस ऑफिसर उस बंदे को रीअरेस्ट करेगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सेक्शन 60, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। जैसे ही किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो उस शख्स को विदाउट एनी डिले, किसी भी शख्स को अगर विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। ठीक हो गया जी। या फिर अगर सबऑर्डिनेट ने किसी ने उस बंदे को अरेस्ट किया तो ऐसी सूरत में उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास, जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन है उसके पास
जो है वो सबऑर्डिनेट बंदा जो है उसको जाके अपने बॉस के पास या इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का उसके हवाले करेगा, उसको पेश करेगा। नेक्स्ट 61, पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। सेक्शन 61 ये वाज़ेह हिदायत देता है कि किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट तो उसको आप 24 घंटे से ज्यादा अपने पास डिटेन नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना जरूरी है। सेक्शन 61 के अंदर ये प्रोविजन है। साथ एक आर्टिकल भी हम लोग पढ़ के आए हैं, उस आर्टिकल आई थिंक 10A 11 तो फोर्स्ड लेबर वाला है, आर्टिकल 10 है गालबन, ऐसा ही है 10 है, ये 10A है, उसके अंदर ये है दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना जरूरी है। साथ सेक्शन 61 CRPC भी ये प्रोवाइड करते हैं हमें कि उस बंदे को विद इन 24 आवर्स हमें पेश करना पड़ेगा। सेक्शन 62, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन shall report to the Zilla Nazim, District Superintendent of Police and District Public Safety Commission set up under the Police Act 1861 stimulously the cases of all persons arrested without warrant। यहाँ पे सेक्शन 62 हमें सिंपली ये बता रहा है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा तो वो उस बंदे की तफसील जो है, जितने बंदे उन्होंने उस दिन में अरेस्ट किए होंगे उसकी जो तफसील है वो जिला नाजिम को या जो SP है पुलिस ऑफिसर या DPO को वो रिपोर्ट बना के वो फॉरवर्ड करेंगे। सेक्शन नेक्स्ट है हमारे पास 63, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस भी शख्स को अरेस्ट किया जाता है उसको ऐसे ही पुलिस जो है मुंह उठा के नहीं छोड़ सकती, बल्कि 3 सूरतें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर वो अपना ऑन बॉन्ड दे दे, पुलिस को अगर लगे कि बंदा बेगुनाह है और हमने गलती से इस बंदे को या शक की बुनियाद पे किसी को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बंदा बेगुनाह है, तो पुलिस उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देती, पुलिस फिर भी उस बंदे से बॉन्ड लेती है, सिक्योरिटी लेती है, तब उसको जाने देती है। उसके बाद दूसरा है बेल करवाता है वो बंदा, तीसरा है मैजिस्ट्रेट का कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाता है उसको छोड़ने के लिए, ऐसी सूरत में वो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है, रिलीज हो जाता है। 63 सेक्शन। नेक्स्ट है जी हमारा 64, ऑफेंस कमिटेड इन मैजिस्ट्रेट प्रेजेंस, अगर प्रेजेंस मैजिस्ट्रेट किसी जगह पे मौजूद था और वहां पे कोई ऑफेंस कमिट हो गया तो मैजिस्ट्रेट के पास भी इख्तियार हासिल है कि वो उस जो अक्यूज पर्सन है उसको अरेस्ट कर सकता है या किसी को भी कह सकता है कि इस बंदे को अरेस्ट कर लो, कस्टडी में ले सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन 65, अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस। पुलिस मैजिस्ट्रेट को लगे कि किसी बंदे ने कोई क्राइम कमिट कर दी है तो ऐसी सूरत में जो मैजिस्ट्रेट है वो किसी को भी ये डायरेक्ट कर सकता है कि इस बंदे को आप लोग अरेस्ट कर लें। नेक्स्ट सेक्शन 66, पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक, अगर एक बंदा किसी भी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी के अंदर था, वहां से वो भाग गया, तो ऐसी सूरत में वो जो पर्सन जिसकी कस्टडी से वो भागा है उसको ये इख्तियार सेक्शन 66 देता है कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी उसका पीछा कर सकता है और कहीं से भी वो उसको अरेस्ट कर सकता है, किसी भी जगह पे वो पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट फाइनल हमारा सेक्शन आज का आखिरी सेक्शन, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47, 48 एंड 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। यहाँ पे सिंपली ये बताया गया कि 47, 48 और 49 सेक्शन की जो प्रोविजंस हैं वो 66 के तहत ही ये जो अप्लाई वहां पे भी हो जाता है, उस अरेस्ट में आप ये भी इसके थ्रू भी इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये था जी आज का हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 5, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट कल 2 चैप्टर हम CRPC के फिर से कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, आप लोगों को समझ आ गई है? जी सर आ गई। कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? नो सर। ठीक है, आप लोगों ने ये 2 चैप्टर्स डेफिनेशन वाला
और ये चैप्टर 5, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। समझ ना आए तो आपने ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना है, मैं दोबारा से समझा दूंगा जहां से आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद आपने 2 चैप्टर नेक्स्ट जो है उनकी भी रीडिंग कर लेनी है, ताकि कल जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों के कंसेप्ट्स ऑलरेडी तकरीबन क्लियर हों। कुछ मेरी तरफ से एड हो जाए तो आप लोगों को वो फौरन से क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ठीक है सर। चलें ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 10 से 11। सर क्विज होगा कल? हाँ जी बिल्कुल, पहले आके ये जितना आज हमने पढ़ा है इसका जो मेन चीजें हैं ना, तो ये हम देख लेंगे। मैं आप लोगों से कोई सवाल कर लूंगा इस हवाले से। तो उसका ये है कि मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है बेसिकली, और साथ में आप लोगों को ये होता है कि इसी बहाने आप लोग पढ़ भी लेते हैं कि यार चले और कोई को सवाल जवाब होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितनी चीजें पूछी जाती हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ये सारी की सारी चीजें तमाम उम्र जो है वो याद रह जाती हैं। जी ठीक है, मीटिंग में क्लोज करने लगा हूं, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है जी, तो सर ओके जी, अल्लाह हाफिज।